Hello, good morning to all of my childrens from the class 3rd and school Universal Public School Arat Shahajani. Then students, you are learning this chapter in the subject Social Studies with Sumitra ma'am. Okay. So once again, good morning to all of you and welcome back in our next period. Hello. Let's go started. So today we are going to study or discuss about our national capital territory, that is the Delhi. Okay. So students, in our social subject we are going to study about some important and main cities, which are the big cities from our India, and one of them, first of all, we are going to teaching or we are going to learning a main and big city, that is the Delhi. You know all Delhi, and where is the location of Delhi in our Indian map? And the Delhi is a national capital territory also. Okay, it is called a national capital territory. See now, this is the map of Delhi. You are watching in this picture. You can see like this process of zoom, such as this is the all map of city Delhi, and in that Delhi you are watching so many cities: northwest, northeast, west, southwest, southeast, New Delhi, east, south. These all directions are included in the Delhi map. So you can watch also, or you can read the names of cities like Begumpur, Nithari, etc. तो दिल्ली के कौन कौन से साइड में कौन कौन से स्टेट है देखो: नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये कौन सा है साइड? नॉर्थ ईस्ट में उत्तर प्रदेश है, एंड बाकी के तीनों साइड में हरियाणा है. तो इस प्रकार से अपने दिल्ली का यहाँ पर मैप आपको दिखाई देता है. तो चलिए अभी और कुछ जान लेते हैं हम अब अपनी दिल्ली के बारे में. This is the location of Delhi. Okay, in the Indian map. You are watching in this picture. In the map of India, here is the New Delhi. Okay, this is. And after that, we will go towards our description or information about the Delhi. Okay, see now. You also see in your book, textbook, and read carefully with me in your mind. So in this lesson we will learn about some major points, and that major points are the location of Delhi, the climate, important buildings, and place of tourist interest. These all major things we have to learn in this chapter. तो यही सभी चीज़ें आज हमें इस दिल्ली नामक चैप्टर में सीखना है. तो दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया. वी ऑल नो दैट दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया. इट इज़ द कैपिटल सिटी. यू नो दैट स्टूडेंट्स, विच इज़ द कैपिटल ऑफ आवर इंडिया? तो दिल्ली. उसका आंसर क्या आता है? दिल्ली. दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया. कीप इट इन योर माइंड. Let me repeat once again. Delhi is the capital of India. Okay. It is situated on the banks of river Yamuna. कहाँ पर situated है ये? कहाँ पर स्थित है?
दिल्ली सिटी, तो बैंक ऑफ रिवर यमुना, इट मीन्स यमुना नदी के किनारे यह दिल्ली शहर बसा हुआ है। दिल्ली इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। दिल्ली का डिवाइडेशन कितने पार्ट्स में हुआ है, कितने हिस्सों में दिल्ली बटी है, तो 2 हिस्सों में। एक है ओल्ड दिल्ली एंड दूसरा न्यू दिल्ली। कौन कौन से नाम है दिल्ली के 2 अलग अलग, तो वह है ओल्ड दिल्ली एंड न्यू दिल्ली। ठीक है। द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, as it is now called, is surrounded by Uttar Pradesh in the east and by Haryana on 3 sides. So after that, in Delhi, the Prime Minister of India, okay, see here, all the important central government offices are located in New Delhi. तो सभी जो भी अपने भारत देश के इम्पोर्टेंट केंद्रीय सरकार के ऑफिसेस है, कार्यालय है, वह सभी कहाँ पर लोकेटेड हुए हैं, स्थायिक है तो स्थित है तो वह न्यू दिल्ली सिटी में। देखो आप याद कर लो, जो किसी भी मंत्रियों का जो ऑफिस रहता है या गवर्नमेंट लोगों का जो ऑफिसेस रहते हैं वह सभी न्यू दिल्ली में स्थित है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट, अदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड मिनिस्टर्स, जैसे कि मैंने अभी कहा, मिनिस्टर लोगों का, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड अदर दूसरी भी जो गवर्नमेंट लोग के ऑफिसेस रहते हैं वह सभी कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में, दिल्ली में सॉरी। ऑल लिव इन दिल्ली, ये सभी लोग कहाँ पे रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, इधर उधर किसी और सिटी में नहीं। ओके, देन गो अहेड, we will see about again the some information about the Delhi. The chief minister, other ministers and lieutenant governor also live in India. चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, अदर मिनिस्टर्स भी उन मंत्रियों के साथ जो कहाँ रहते हैं, दिल्ली में ही रहते हैं। The embassies and high commissions of other countries are situated in Delhi, है ना। उच्च आयोग, जो कमीशन आयोग जिसे हम कहते हैं, वह भी कहाँ पर है, दिल्ली में ही है। See, this is the map of India and this is the map of Delhi also you are watching in this picture. Some information about the climate now. चलिए कुछ जान लेते हैं दिल्ली का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का हवामान या वातावरण जिसे हम कहते हैं। तो दिल्ली इज़ वेरी हॉट इन समर्स। दिल्ली में समर सीजन में बहुत ही हॉट रहता है, बहुत ही हीट, गर्मी या उष्णता जिसे हम कहते हैं। हॉट विंड्स कॉल्ड लू ब्लो इन समर्स। उन दिनों समर में हॉट विंड्स ब्लो हो जाते हैं एंड उस ब्लो को क्या कहते हैं, विंड को लू कहते हैं। क्या नाम है उसका, लू। लू नामक हॉट विंड समर सीजन में दिल्ली में बहते हैं, जिसकी वजह से लोगों को बहुत हानि झेलनी पड़ती है, सहन करनी पड़ती है। द विंटर्स आर वेरी कोल्ड बट इन द अपोजिट ऑफ समर सीजन। समर सीजन के बिल्कुल अपोजिट कंडीशन कौन से सीजन में रहती है, वो है विंटर सीजन में। इट मीन्स दैट मीन्स विंटर्स आर वेरी कोल्ड। विंटर सीजन बहुत ही ठंड रहता है, ठंडी उस दिनों में महसूस होती है। जुलाई एंड अगस्त आर ह्यूमिड एज दे आर द रेनी मंथ्स। एंड जुलाई एंड अगस्त नाम का जो महीना है वो 2 मंथ रेनी मंथ्स के नाम से जाने जाते हैं। उस मंथ्स में अधिकाधिक मात्रा में ह्यूमिड रहता है। ह्यूमिड मीन्स आर्द्रता जिसे हम कहते हैं। डू यू नो स्टूडेंट्स, न्यू दिल्ली वॉज डिजाइंड बाय द एडविन लुटियंस। न्यू दिल्ली का जो डिजाइन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो वो था एडविन लुटियंस। ये भी जानकारी आपके लिए जरूरी है, कीप इट इन योर माइंड। आफ्टर दैट वी विल मूव टुवर्ड्स द फूड एंड फेस्टिवल्स फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली में किस प्रकार के फूड एंड फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं एंड कौन कौन से फूड वहाँ के लोगों के द्वारा अर्जित किए जाते हैं या खाए जाते हैं। पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स लिव इन दिल्ली। जैसे कि हम जानते हैं सभी प्रकार के, सभी धर्मों के लोग जो हैं वह दिल्ली में रहते हैं। लाइक पीपल ऑफ दिल्ली एंजॉय ऑल टाइप्स ऑफ फूड, जैसे कि साउथ इंडियन, चाइनीज, तिबेटियन, इटालियन, मुगलाई आदि सभी चीज़ों के प्रकार के नमूने
या फूड के प्रकार वहाँ के लोग एंजॉय करते हैं, खा लेते हैं। एंड जैसे कि हमने अभी कहा, पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स लाइव इन दिल्ली, सभी धर्मों के लोग दिल्ली में रहते हैं, इसीलिए उसे बहुधर्मीय सिटी भी कहा जाता है। सो ऑल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ दिल्ली, दैट्स वाई ऑब्वियसली सभी प्रकार के फेस्टिवल भी तो मनाए जाएंगे, क्यों तो अलग अलग धर्मों के लोग अगर वहाँ पे रहते हैं तो उनके फेस्टिवल भी अलग अलग हो जाएंगे, तो उनको वह सेलिब्रेट करेंगे ही। तो इसी प्रकार से हम दिल्ली में विविधता में एकता एक का उदाहरण जैसे कि हम देख सकते हैं। बीइंग द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, ये दिल्ली जो है भारत की कैपिटल सिटी होने की वजह से नेशनल फेस्टिवल्स। हाँ, तो अब हम देख रहे हैं, देखिए फूड एंड फेस्टिवल के बारे में। जो फूड आप यहाँ पर देख रहे हो वो उसी प्रकार के फूड सभी दिल्ली वाले लोग वहाँ पे एंजॉय करते हैं। दिस इज द वन मोर डिश ऑफ दिल्ली, जो लोग वहाँ पे खाते हैं, बनाते हैं। नाउ द फेस्टिवल्स, ओके, देयर आर सो मेनी फेस्टिवल्स लाइक द होली, यू आर वॉचिंग दिस पिक्चर ऑफ होली, after that Diwali, after that Dashera. These are all the festivals celebrated by the people of Delhi because of their variety. Now the transport, we have to learn about the transport. It means we will discuss some major points about the transportation of Delhi. So Delhi has the metro rail system which is progressing day by day. It has changed the face of the transportation system in Delhi. It means Delhi जो है उसका जो metro rail system है which is the progressing day by day. It means the metro railway which is the so much facilities in that railways. So that railway is progressing डे बाय डे, मतलब जैसे कि भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, उसी के साथ साथ ये जो ट्रेन की वजह से है हमारे देश की या हमारे दिल्ली सिटी की प्रोग्रेस भी बढ़ती जा रही है, यकीनन बढ़ती ही जाएगी, देयर इज नो डाउट। इट हैज चेंज द फेस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन दिल्ली, उसने तो पूरे के पूरा फेस ही उसका बदल चुका है, जैसे कि इस मेट्रो दिल्ली के ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। इट हैज मेड ट्रैवलिंग वेरी कन्वीनियंट एंड कंफर्टेबल आल्सो। Delhi has 2 airports. In the Delhi city, there are 2 airports, and the names of that airports are C1 पालम for domestic flights. पालम नाम का जो एयरपोर्ट्स है वह किस लिए है? डोमेस्टिक फ्लाइट्स। इट मीन्स देश के अंतर्गत जो भी फ्लाइट्स उड़ान लेती है उन फ्लाइट्स का जो एयरपोर्ट है, स्टेशन है, दैट इज द पालम। एंड आफ्टर दैट इंदिरा गांधी एयरपोर्ट फॉर इंटरनेशनल फ्लाइट्स। अंतर्देशीय फ्लाइट्स की उड़ान करवाने के लिए जो भी स्टेशन बनवाया गया है उस स्टेशन का नाम है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस टिल हियर स्टूडेंट्स। वेल, you are watching, this is the picture of metro rail also in this picture. See, now we will move towards the famous buildings and places. चलिए आप जान लेते हैं हम कुछ दिल्ली सिटी के फेमस जो सुप्रसिद्ध बिल्डिंग्स है या प्लेसेस है, जगह है, ऐसे ठिकान है जहाँ पे लोगों का दिल बहलाया जाता है, बहुत ही स्फूर्ति मिलती है वहाँ से लोगों को। दिल्ली हैज मेनी फेमस बिल्डिंग्स आल्सो। दिल्ली में बहुत सारी कई सारी फेमस बिल्डिंग्स है जिनके नाम हम अब जान लेते हैं। द रेसिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द राष्ट्रपति भवन। दिल्ली नामक सिटी में, जो कि अपने भारत देश की कैपिटल है, राजधानी है, उस राजधानी शहर में रेसिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वहां पे भारत के राष्ट्रपति का जो भवन है, उनका जो रेसिडेंस है, मतलब रहने का निवास जिसे हम कहते हैं, एक प्रकार का ऑफिस है, उसे राष्ट्रपति भवन नाम का नामकरण किया गया है। एंड द फेमस मुगल गार्डन्स आर अ पार्ट ऑफ द राष्ट्रपति भवन आल्सो। फेमस मुगल गार्डन जो है, इट इज अ पार्ट ऑफ राष्ट्रपति भवन। ये जो मुगल गार्डन है वह राष्ट्रपति भवन का ही एक पार्ट है, एक हिस्सा है। एंड उसी के साथ साथ हम इसे देख सकते हैं
as well as Rashtrapati Bhavan. We can see the Mughal garden also. See, this is the Rashtrapati Bhavan in this image picture you're watching, and after that this is the Mughal garden. Okay, see properly. After that we will move towards the another major point, that is the Amar Jawan Jyoti. The wide straight road between the India Gate and the Rashtrapati Bhavan is called the Rajpath. अर्थात बच्चों, जो मुगल गार्डन है एंड द राष्ट्रपति भवन, इन दोनों के बीच एक बड़ा विस्तृत जो रोड बनाया गया है स्ट्रेट लेवल में, एक सरल दिखता है, उस हाईवे के जैसे रोड से राष्ट्रपति भवन एंड ये जो मुगल गार्डन है दोनों जोड़ी जा चुकी है। एंड उसी रास्ते को हम क्या कहते हैं, राजपथ, अर्थात राजपथ नाम से वह रोड को जाना जाता है। फॉर काइंड इंफॉर्मेशन, you keep it in your mind and listen it carefully. Once again I am repeated, and the road of that name is Rajpath. Let's go ahead. On Republic Day, a grand parade is held at the Rajpath every year. And one more most important thing, that is on the Republic Day, it means जैसे कि अभी अभी 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे कहते हैं, एंड उसी दिन ग्रैंड परेड हो जाता है। कहाँ पर, राजपथ पे, दिल्ली में, इजंट इट, दिल्ली शहर में राजपथ नामक रोड पे अपने भारत देश का एक महाविस्तृत परेड भी हो जाता है। कहाँ पर, राजपथ पे। किस शहर में, दिल्ली शहर में। ओके, लेट्स मूव अहेड। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द अमर जवान ज्योति burns at India Gate in memory of Indian soldiers who laid down their lives for the country. यह जो अमर जवान ज्योति है वह यहाँ पे जलती है किसके स्मरण में, इंडिया गेट पे। इंडिया गेट द मेमोरी ऑफ इंडियन सोल्जर्स, भारतीय सैनिकों के स्मरणार्थ जो यहाँ पर अमर जवान ज्योति स्मारक बना गया है वही यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, एंड दैट इज द वेरी गुड लुक। See again here. In this page you are watching the transport like the metro rail, after that Rashtrapati Bhavan, after that Mughal garden, and after that the Amar Jawan Jyoti, and the last is that is the Indian Gate. See, this is the one more picture of India Gate here. Clearly you can watch here. दिस इज द इंडिया गेट फ्रॉम द दिल्ली ऑल्सो। इट मीन्स दिल्ली शहर में एक बहुत ही बड़ा एंड प्रशंसनीय ऐसा गेट बनवाया गया है जिसे इंडिया गेट के नाम से जाना जाता है। आफ्टर दैट दिस इज द पार्लियामेंट हाउस। यू नो पार्लियामेंट हाउस, संसद भवन जिसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं पार्लियामेंट को, संसद भवन। वो भी कहाँ पर है, दैट इज इन द दिल्ली। आफ्टर दैट वन मोर फेमस नेम, दैट इज द रेड फोर्ट। It is a fort, and that is the कुतुब मीनार। रेड फोर्ट इट मीन्स लाल किला, दिल्ली में ही है, सिचुएटेड है। एंड उसी के साथ साथ कुतुब मीनार नामक भी दूसरा जो मीनार है वह भी दिल्ली में ही सिचुएटेड है। ये दोनों जो बिल्डिंग्स है ना स्टूडेंट्स, वह मुगलों के साम्राज्य में ही बनाई गई है, एंड वहीं पे उन्होंने दिल्ली पे ही इन्हें सिचुएटेड की है। You can watch here the Jantar Mantar also. The Parliament House is a beautiful circle building. It is near the Rashtrapati Bhavan. See, this is the Parliament House you are watching here. सो द पार्लियामेंट हाउस जो है यह किस प्रकार का है, एक बहुत ही सुंदर एंड सर्कुलर बिल्डिंग है। इट मीन्स यह जो गोलाकार आकार में स्थापित की गई बिल्डिंग है जो राष्ट्र अपने देश का संसद भवन है। इट इज़ नियर द राष्ट्रपति भवन। यह राष्ट्रपति भवन के नज़दीक ही सिचुएटेड है, स्थित है। पार्लियामेंट मेक्स द लॉज ऑफ आवर कंट्री। यह जो पार्लियामेंट है, जो संसद भवन है, वह क्या करती है, उसका कार्य क्या है, तो वह अपने भारत देश की लॉज, नियम, कायदा, कानून जिसे हम कहते हैं, वही जो संगठना के रूप में हमें फॉलो करवाने को
अनिवार्य करती है। यही जो नियम फॉलो करने का कार्य है वही है पार्लियामेंट हाउस का। दिल्ली हैज़ मेनी ओल्ड मोनूमेंट्स लाइक रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, जंतर मंतर, पुराना किला, ह्यूमांस टॉम एटसेट्रा। तो आदि जो बिल्डिंग्स है वो मोनूमेंट्स के नाम पे जाने जाते हैं। कौन कौन सी है? रेड फोर्ट, सी दिस इज द रेड फोर्ट, आफ्टर दैट कुतुब मीनार, आफ्टर दैट जंतर मंतर। दिस इज द वन टाइप ऑफ मोनूमेंट, स्मारक जिसे हम कहते हैं। इन दिल्ली सिटी देर आर सो मेनी टेम्पल्स ऑल्सो। हाँ, that is the first Birla Mandir. Wow, so nice, very nice. You can see this is the Birla Mandir. You can zoom also it. See, this is the, see, this is the Birla Mandir. Okay, so nice, na? Yeah. आफ्टर दैट दिल्ली में जो सबसे अहम एंड चर्चित मंदिर है वह है अक्षरधाम मंदिर। यह दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। एंड द नेक्स्ट scene of this Akshardham Mandir is such type. See here. And this is the जामा मस्जिद फ्रॉम दिल्ली। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि दिल्ली में बहुधर्मीय लोग रहते हैं, तो जाहिर है उन अलग अलग धर्मों वाले लोगों के अलग अलग मंदिर भी वहाँ पे रहेंगे। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मुस्लिम मंदिर लाइक ए जामा मस्जिद। इट इज अ बिग टेम्पल you are watching in this picture. Look carefully. This is one of the most holiest and biggest temple in the Delhi. This is the Lotus Temple. After that, you are watching, this is the Lotus Temple from Delhi. So such a way, students, we have completed here our lesson or this chapter. We discussed about the temples, monuments and some national houses. After that we will move towards the Rajpath and shopping malls. See, it has a number of religious places. Some of them are बिरला मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर उसे भी कहते हैं। अक्षरधाम टेम्पल होने के बाद लोटस टेम्पल हो गया। जामा मस्जिद के बारे में भी हमने देख लिया। बांग्ला साहिब एंड सिसगंज गुरुद्वाराज, ये भी तो टेम्पल वहाँ पे दिल्ली में ही सिचुएटेड है। सर सेंट स्टीफन्स चर्च एंड द कैथेड्रल ऑफ द स्कैर्ड हार्ट, ये भी टेम्पल दिल्ली में ही है। एंड नाउ यू आर watching this Rajghat here. On the Rajghat there is a, it has samadhis of some great Indian leaders. Rajghat is the samadhi of Mahatma Gandhi. हाँ, तो हम देख रहे थे राजघाट के बारे में। It has samadhis of some great Indian leaders also. It means India has a, इंडिया में अपने भारतीय महान जो लीडर है, प्रमुख स्वतंत्र सेनानी, जिन्होंने अपने देश के लिए अपना प्राण त्याग दिए,
अपना जो भी योगदान था वह दे दिया। उन लोगों की कुछ समाधियाँ जो हैं वह दिल्ली में है। जैसे कि राजघाट इज़ द समाधि ऑफ महात्मा गांधी। राजघाट नाम की यह जो समाधि है वह किसकी समाधि है? महात्मा गांधी की है। कहाँ पर है? दिल्ली में है। whom we call father of the nation। महात्मा गांधी को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रपिता, है ना, फादर ऑफ द नेशन। तो शांतिवन इज द समाधि ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो शांतिवन नाम की जो समाधि है वह भी दिल्ली शहर में ही है। एंड वह शांतिवन नामक समाधि किसकी है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि अपने भारत देश के सबसे पहले पंत प्रधान रहे थे। एंड विजय घाट इज दैट ऑफ द लाल बहादुर शास्त्री समाधि। विजय घाट यह किसकी समाधि है? लाल बहादुर शास्त्री की है। शांतिवन पंडित जवाहरलाल नेहरू की। एंड राजघाट महात्मा गांधी की। इन तीनों के नाम याद करना बच्चों, चाहे तो फिर से एक बार आप वीडियो 2 बार 3 बार देख सकते हैं। राजघाट महात्मा गांधी समाधि, शांतिवन पंडित जवाहरलाल नेहरू समाधि, विजय घाट इज द लाल बहादुर शास्त्री समाधि। Okay, let's go ahead. Other interesting places to visit in Delhi are Zoological Park, Nehru Planetarium, Dolls Museum, Rail Museum, National Museum, and Pragati Maidan. These are the most interesting places which have in Delhi. We can visit them. And after that we'll see about the shopping malls from Delhi. चलिए थोड़ा कुछ जान लेते हैं दिल्ली के शॉपिंग मॉल्स के बारे में, कहाँ पर है, कैसे हैं। दिल्ली हैज़ अ बिग शॉपिंग सेंटर्स लाइक कैनॉट प्लेस, पालिका बाजार, चांदनी चौक, करोल बाग एंड कमला नगर। Many malls have made shopping a pleasure in Delhi। ये जो सभी मॉल्स है क्या दिल्ली में बहुत ही प्लेजर बांट देते हैं, निर्माण करते हैं, आनंद देते हैं लोगों को। क्यों? तो दिल्ली हैज़ बिग शॉपिंग सेंटर्स। जैसे कि दिल्ली नाम का जो शहर है बहुत ही बड़े एंड कई सारे शॉपिंग मॉल्स का सेंटर है। एंड वहाँ पे शॉपिंग करके लोग अपना मन भर लेते हैं। जैसे कि हमने अभी पढ़ा पालिका बाजार, चांदनी चौक, करोल बाग, ये जो कमला नगर, ये जो है आदि सभी नगरों में शॉपिंग मॉल्स सिचुएटेड हैं। तो मेनी नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स आर हेल्ड इन दिल्ली। इसी के साथ साथ कई सारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं भी यहाँ पर सेलिब्रेट की जाती है। कहाँ पर? दिल्ली में। तो दिल्ली हैज सक्सेसफुली होस्टेड एशियन गेम्स एंड द कॉमनवेल्थ गेम्स आल्सो इन 2010। तो दिल्ली में एक बहुत ही यशस्वीपूर्ण होस्ट हो चुकी है जो कि एशियन गेम्स के बारे में। तो एशियन गेम्स मतलब आशियाई खेल जिसे हम कहते हैं, एंड कॉमनवेल्थ गेम्स, ये जो है सन 2010 में अच्छे से यशस्वी तरह से, जिसे हम कहते हैं बहुत ही सक्सेसफुली, वहाँ के लोगों ने दिल्ली में हेल्ड किया है, होस्ट किया है। So such a way this is the introduction about the Delhi. This is the information of city Delhi. So you are watching in this picture the shopping mall of Delhi. It is also. So I think such a way we have completed here our chapter Delhi. It means आज हमने जो चैप्टर पढ़ा वह था दिल्ली नामक चैप्टर। दिल्ली है जो क्या है, वह अपने भारत देश की राजधानी है। एंड उस राजधानी के बारे में हमने एक हल्का सा झलक, जैसे कि थोड़ी सी जानकारी उसके बारे में हल्की सी जानकारी ले ली है। मेन पॉइंट्स हमने यहाँ पर डिस्क्राइब्ड किए हैं एंड उसी पॉइंट्स के द्वारा हमने दिल्ली नामक शहर को जान लिया है बच्चों आज अपने सोशल स्टडीज़ में। चलिए देखते हैं कितना आपको याद रह जाता है। यू कैन सी this video again and again and you can learn also again and again
You can repeat it to watching and to listening also. See here, these all the mentioned things are in situated in Delhi. Just see. See, this is the Rashtrapati Bhavan. This is the Delhi metro train. These are the festivals, food from Delhi. And the location of Delhi in the Indian map. And this is the Delhi. Okay. I think you students you understand well this chapter. These are the historical monuments from Delhi. This is the Birla Mandir, Akshardham Mandir, Jama Masjid, Lotus Temple, Rajghat, and shopping mall. Okay. Such a way we have completed here our chapter.